Good morning, everyone. This is Amit Jaiswal. I am going to read newspaper. At the heart of this scam lies the best interest principle governing the bail framework under JJA. इस विवाद के केंद्र के जेजेए के तहत जमानत को जेजेए इस विवाद के केंद्र के जेजेए के तहत जमानत की महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं. In analysis this, we went to underscore the caste-based forming childhood. इसका विश्लेषण करते हुए हम बच्चों के जात आधारित ढांचों को रेखांकित करना चाहते हैं. That finds its way into interpretation of the principle best interest by JJP, जो JJP द्वारा दिए गए सर्वोत्तम हित के ढांचों को मजबूत करता है. This is especially so for those belonging to Vimukta communities or denotified tribes formerly demand as जो विशेष रूप से विमुक्ता समुदाय या विमुक्ता जनजाति के लिए है. अंडर द रैपिड क्राइम ट्रायल्स एक्ट CTA of 1871, जिन्हें 1871 ईस्वी में CTA के द्वारा अपराधी माना जाता था. CTA was swiftly replaced with nebulous habitual offense. CTA को तेजी से स्पष्ट रूप से आदरणीय अपराधी को कानूनों और सामाजिक राज्यों के प्रावधानों से बदल दिया गया. Format where our states embodies the logic CTA averaged in administrative natural form. A central tenet of both CTA and HO laws previous has been criminalization of families including the children. CTA और HO दोनों कानूनों प्रावधानों को बच्चों के साथ साथ उनके परिवारों का अपराधीकरण हो रहा है. It is crucial to locate a law like JJA within the socio-legal history of criminalization of Vimukta children. विमुक्ता बच्चों के अपराधीकरण को कानूनों सामाजिक रूप से अपराधीकरण को कम करने के लिए JJA जैसे कानून को ढूंढना महत्वपूर्ण है. थैंक यू सो मच. Good morning, all of you. This is Nidhi Yadav. I am a student of class 10. Today I am going to read newspaper. At the heart of this scheme lies the best interested principle governing the bail framework under JJ. इस मतभेद के मूल में सर्वोत्तम हित सिद्धांत लागू होता है. जेजे द्वारा जमानत के ढांचे में. इन एनालिसिस दिस इसका विश्लेषण. वी वांट टू
underscore the caste-based framing of childhood that finds its way into the interpretations of the principle of best interest by the JJB। इसका विश्लेषण करते हुए हम बचपन के जात के आधारित रूपरेखा को रेखांकित करना चाहते हैं जो जेजेपी द्वारा सर्वोत्तम हित के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अपना रास्ता खोजती है। This is especially so for those belonging to Vimukta Samudaya or denotified tribes। यह विशेष रूप से विमुक्त समुदाय और विमुक्त जनजाति में विमुक्त समुदाय के लोगों के लिए है। Formally deemed as born criminals under the Repealed Criminals Trips Act CTA of 1871, जिन्हें 1871 के निरस्त आपराधिक जनजाति अधिनियम CTA के तहत जन्मजात अपराधी माना जाता था। CTA was swiftly replaced with the nebulous habitual offender HO laws and provision formulated in various states that embodies the logic of CTA, albeit in the administratively natural form। CTA को तेजी से स्पष्ट अपराधी HO कानूनों और विभिन्न राज्यों में तैयार किए गए प्रशासनिक प्रतिस्थापित किया गया था जो प्रशासनिक तथास्तरूप के लिए CAT राज्यों को कानून प्रावधानों दोनों एक केंद्रीय है। A center tenth of both CTA and HO laws provision has been a criminalization of families, including children। CTA और HO कानूनों प्रावधानों दोनों एक साथ केंद्रीय सिद्धांतों बच्चों सहित परिवारों का अपराधीकरण किया है। It is crucial to locate all JJ within the social legal history of the criminal sessions of Vimukta children। विमुक्ता बच्चों का आपराधिक इतिहास में सामाजिक कानूनी इतिहास के भीतर जेजे जैसे कानून का पता लगाना महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। Good morning everyone, this is Aditya Yadav. I am going to read newspaper. Multiple choice question, testing deep understanding with limit subjective question. There is a common belief that multiple choice question MCQ can only test release of fact and are prone to gooseback or cheating। बहुविकल्पी प्रश्नों के समझीकरण के दौरान इन्होंने सभी लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा मल्टीपल बहुविकल्पी प्रश्नों को परीक्षार्थियों को देने के लिए अनुदित किया गया है। डीप अंडरस्टैंडिंग एंड इंक्लूडिंग कॉमन मिशन
keeping and wrong choice to templing, but the best student can be better for exam like NEET or JEE that then short or long answer where will mirroring correction of other question type introduction subject wise certain skill on the making पेपर्स आर्गुमेंट और सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। इसके दौरान उन्होंने अपने गलत गलत प्रश्नों के जवाब देने के लिए बेस्ट अच्छे बच्चों के एग्जाम में नीट और जेई के सभी लॉन्ग आंसर को बढ़ाने के लिए अपना दावा प्रश्नों के आधारित पे किया है। सब्जेक्ट वाइज आर्गुमेंट देयर फॉर सच टेस्ट शुड इंक्लूड वन और अ फ्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन अ सेकंड पेपर व्हिच वुड बी मैनुअली सेकंड ओनली फॉर अ से द टॉप 20% और कैंडिडेट्स if the goal is the eventually select the top 10%। इसके बावजूद उन्होंने बहुविकल्पी प्रश्नों के अपने आधारित पर देने का निश्चय किया और उन्होंने 20% बच्चों को अपने अंदर की क्षमताओं पर टॉपर बनाने की श्रेणी में रखने की क्षमता रखा। थैंक यू सो मच। Good morning everyone, this is Gaurav. I am a student of class 9. I am going to read newspaper. Multiple choice questions testing deep understanding with limited subjective question। बहुविकल्पी प्रश्नों के गहरी समझ को सीमित रखने के लिए व्यक्तिपूर्वक प्रश्न को आस्था के परीक्षण में लाना चाहिए। There is a common belief that multiple choice question MCQ can only test recall of facts and are prone to guesswork and cheating। और वहाँ याद करने के तथ्य पर प्रवृत्ति को अनुमान लगाने के समग्र में उसे बढ़ाने की आदत देने वाले लोगों को बेईमानी करना तथा तथ्यात्मक चित्रों से व्यक्ति करना होता है। MCQ that test deep understanding and include common misconceptions as wrong choice to tempt all but the best students। और उन माने जाने बच्चों को यह गलत तरीके से सुझाव दिया जाता है कि वह अपने कैरियर को कैसे इन्वॉल्व करेंगे। कैन बी बेटर फॉर एग्जाम्स लाइक नीट और जी देन शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स। जैसे कि अच्छे एग्जामों में नीट और जी में कैसे शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका। वाइल द मैनुअल करेक्शन ऑफ अदर क्वेश्चन टाइप्स इंट्रोड्यूस सब्जेक्टिवली। और उसे कुछ कौशल प्रेरक जटिल समस्या को मापा जाने शामिल करने में इफेक्ट करे। सर्टेन स्किल लाइक मेकिंग प्रीवियस आर्गुमेंट्स और सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में नॉट बी मेजर्ड बाय MCQ। और उस बहुविकल्पी प्रश्न को आर्गुमेंट करके शामिल मैनुअल रूप से स्कोर शीर्षक 20 से उसको हटाया जाए। थैंक यू सो मच। Good morning, all of you. This is Ayush Pandey. I am going to read newspaper. At the heart of the scheme lies the best interest principle governing in analyzing this. We want to understand childhood that find its way into the interpretation. जात के आधार पर राजनीतिकरण का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन है कि यह रूपरेखा के अंतर्गत JJE का अनुभव में भी यह एक प्राप्तांक स्कोर के जात पर रूपरेखा बनाए। That find its way into the interpretation of the principle of best interest। यह पता करने के लिए कि व्याख्या पता करने के लिए कि यह प्रावधान के कुछ बाय बेस्ट इंटरेस्ट JJB द स्पेशल फॉर दीज बिलोंगिंग, जो कि यह एक उच्च व्याख्यान के लिए JJB है।
दिस स्पेशल फॉर दिस दोज बिलोंगिंग टू वेकुमटा कम्युनिटी। यह एक मुख्य संबंधित समुदाय है जो कि एक वेकुमटा समुदाय से है और डिनोटिफाइड ट्राइब्स फॉर्मरली डेमिड आज बॉर्न इन क्रिमिनल। यह डिनोटिफाइड किया गया है जो कि जनजातियों को पहले समझा जाता था अंडर द रिप्लेस्ड क्रिमिनल्स ट्रिब्स एक्ट सीटीए, जो कि एक कानूनी अपराधीकरण है जो कि सौंपा गया है राजनीतिक को देने के लिए। विद द नेडू लुइस हैप्चुअल अफेंडर, अस्पष्ट आदतन अपराधी को कानून के द्वारा प्रोविजन फॉर्मुलेटेड इन वेरियस स्टेट ऑफ एम्बॉडीड द लॉजिकल सीटीए एडल्ट, जो कि यह प्रावधान को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के राज्यों को शारीरिक और कानूनी सीटीए को युवा के प्रशासनिक और सामान्य फॉर्म में लाने के लिए। अ सेंट्रल टेंट ऑफ बोथ सीटीए, एक केंद्र का सीटीए और एचओ लॉज प्रोविजन हैज बीन क्रिमिनलाइज, जो एचओ कानून को प्रावधान में अपराधीकरण के लिए परिवार को मिलने के लिए बच्चों से एक महत्वपूर्ण में स्थल का कानून बनाना चाहिए। जेजेई विथिन द सोशल लीगल हिस्ट्री इन क्रिमिनल स्टेशन ऑफ वेकुमटा चिल्ड्रेन, जेजेई के साथ सामाजिक और वास्तविक इतिहास के अपराधीकरण में एक वेकुमटा बच्चे भी थे। थैंक यू। Good morning everyone. This is Pragya Sahu. I'm the student of class 10. Today I'm going to read newspaper. At the heart of this scheme lies the best interest principle governing the bail framework under JJA. At the heart of this scheme, इस मतभेद के मूल में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जमानतीय ढांचे को नियंत्रित करने वाला सर्वोत्तम हित सिद्धांत निहित है। इन एनालाइजिंग दिस, इस विश्लेषण में वी वांट टू अंडरस्कोर द कास्ट बेस्ड फ्रेमिंग ऑफ चिल्ड्रन that find its way into the interpretation of principle of best interest by JJA. We want to underscore, हम रेखांकित करना चाहते हैं, the caste based framing of childhood, बचपन के जाति आधारित रूपरेखा को हम रेखांकित करना चाहते हैं, that find its way into the interpretation of principle of the best interest by JJB, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा सर्वोत्तम हित के सिद्धांत की व्याख्या में अपने रास्ते को खोजना चाहता है। दिस इज स्पेशली, या विशेष रूप से, सो फॉर दोज बिलोंगिंग टू विमुक्त कम्युनिटीज और डेनोटिफाइड ट्राइब्स, या विशेष रूप से विमुक्त समुदायों और विमुक्त जनजाति से संबंधित लोगों के लिए है। फॉर्मरली डीम्ड एज बॉर्न क्रिमिनल अंडर द रिपील्ड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871, आपराधिक जनजाति अधिनियम में 1871 के तहत आपराधिक जनजात को निरस्त माना गया है। CTA was swiftly replaced with the nebulous habitual offender laws and provision formulated in various states. CTA was swiftly replaced with nebulous habitual
ऑफेंडर लॉज। सीटीए को शीघ्रता से आदतन आपराधिक कानूनों के साथ बदल दिया गया है and provision formulated in various states that embodied the logic of CTA, albeit in an administratively neutral form। यद्यपि प्रशासनिक रूप से तटस्थ रूप में विभिन्न राज्यों में प्रावधान तैयार किए गए प्रावधानों जैसे सीटीए पर तर्क दिया जाएगा। A central tenet of both CTA and HO laws provision has been criminalization of families including children। सीटीए और एचओ कानूनों प्रावधानों को बच्चों सहित परिवारों का भी अपराधीकरण रहा है। It is crucial to locate a law like JJA within the psycho-legal history of criminalization of विमुक्त children। विमुक्त बच्चों का अपराधीकरण का सामाजिक कानूनी इतिहास के अंदर जेजेए जैसे कानून का पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। Good morning, everyone. This is Khushi Yadav. I read in class 10. I am going to read newspaper. At the heart of this scheme lies the Westminster principle governing the bail framework under JJA. इस विवाद के केंद्र में जेजेए के तहत सर्वोत्तम हित जमानत के लिए सर्वोत्तम हित को दर्शाया गया है। In analyzing this, we want to underscore the caste-based framing of childhood that find its way into the inspiration of the principle of best interest by JJB, जो कि बच्चों के बचपन को जाति आधारित रूप से रेखांकित करता है। This is especially so for those belonging to विमुक्त communities or denotified tribes, जो कि विमुक्त समुदाय और जनजाति formally demands as born criminals under the Replaced Criminal Tribes Act CTA of 1871, जो कि 1871 में अपराधियों को जनजात के कार्य पर बदलने का विचार देती हैं। CTA was swiftly replaced with the nebulous habitual offender HO laws and provision formulated in various states that embodies of logic of CTA, albeit in an administratively natural form। जो कि सीटीए कानून और जनजात के अवस्था और अवतीर्ण गत को दर्शाता है। CTA albeit a central tenet of both CTA and HO laws provision has been the criminalization of families
जो कि बच्चों के साथ उसके परिवार को भी अपराध बच्चों के साथ उसके परिवार का भी अपराधीकरण करता है। It is circular to locate a law like JJ within the socio-legal history of the criminalization of विमुक्ता children, जो कि विमुक्त बच्चों के के को कानून और नियम JJA के तहत सामाजिक इतिहास को दर्शाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। Good morning, everyone. This is Saurav Yadav. I am in class 9th. Today, I am going to read newspaper. Multiple choice question testing deep understanding with limited subjective questions. बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर उसे सूचित किया जाता है कि there is a common belief that multiple choice question MCQ and can only test recall of facts and are prone to guesswork and creating. उसे रिकॉल करने का सही तरीके से अनुमान लगाने का काम या बेईमानी से सूची को these nations are factually incorrect MCQ that test deep understanding and including common misconception and wrong choice to tempt but the best students. अनुमान लगाने का काम या बेईमान सूची को बढ़ाने का तथ्यात्मक रूप से धारणाएं का समान गलत धाराएं को सूचित किया है। थैंक यू। Good morning, everyone. This is Ansika Pandey. I am going to read the newspaper. At the heart of this scheme lies the best interest of the principal governing of the bail from work under the JJA. इस विवाद के मूल में JJA के तहत जमानत के ढांचे में नियंत्रित करने वाला सर्वोत्तम हित संविधान निहित है। Analyzing this, we went to secure the caste-based farming of the childhood that find its way into the interpretation. इसका विश्लेषण आयोजन करने के लिए जाति आधारित बचपन में रेखाचित्र करने वाले दिलचस्प रेखाचित्र है। This especially for those belonging विमुक्ता communities. विशेष रूप से संबंधित विमुक्ता समुदाय और denotified tribes. The formerly demand has borne and criminals under the replaced Criminal Trial Act of 1871. विमुला समुदाय को विमुख जातियों पर पूर्व मानने के लिए अपराधी को 1871 में नियंत्रित किया गया। The CTA of the Swift replaced with the Nevious Actual Offend Law and the provision formulated various states of the abolished the local CTA abolished of the administrative तेजी से बदलाव के स्पष्ट आधारित वेरिएश तर्क में यद्यपि अपराधी को प्रावधान तैयार किया गया है natural from the central tenth of the both
CTA and HO law prevention has been a criminalization of families including children. सम्मिलित करने के लिए उत्कीर्ण प्रशासनिक प्रावधान आधारित है जो कि क्रिमिनलाइजेशन अपराधी को नियंत्रित करने के लिए इट इज द critical to located a law like JJA within the sociological history of the criminalization of विमुक्त children. विमुक्त बच्चों के लिए अपराधीकरण के सामाजिक कानूनों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। थैंक यू। Good morning, all of you. This is Mahima Dhuria. I am a student of the class 10. Today, I am going to read newspaper. Juvenile Justice and the Children of Lesser Gods. किशोर न्याय और छोटे देवताओं के संतान. There was an uproar recently over the accident in Pune caused by a minor allegedly drinking and driving a high-end vehicles. हाल ही में पुणे में हुए दुर्घटना में एक नाबालिग द्वारा शराब पीकर महंगी कार चलाने की वजह से which resulted in the death of 2 individuals, जिसका परिणाम स्वरूप 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। The aftermath of the accident elicited scrutiny over the rule of the Juvenile Justice Board (JJB), जिसके बाद किशोर न्याय बोर्ड के नियमों पर सवाल उठाया गया। कंपेरिजिंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड 2 सोशल वर्कर्स, जिसमें प्रथम श्रेणी में न्यायिका मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। कंटिन्यूटी अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 और JJA। किशोर न्याय और देखभाल संरक्षण अधिनियम के तहत 2015 के तहत गठित किया गया। इन ग्रांटिंग बेल टू द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ CCL इन द पुणे केस में नाबालिगों को बेल देते समय JJB imposed condition like writing an essay on road सेफ्टी। JJB किशोर न्याय बोर्ड ने सड़क सुरक्षा पर निबंध लिखने जैसे शर्तों को लगाई। अ मेजर क्रिटिक has been the special treatment afforded to the minor given in influential family background, जिसके बाद नाबालिगों के फैमिली पृष्ठभूमि को देखकर उन्हें एक स्पेशल उपचार भी दिए गए। कंपेयर दिस द केस ऑफ अ यंग बॉय फ्रॉम द कन्नड़ कम्युनिटी। इस घटना की तुलना कंजर समुदाय के बालकों युवा लड़कों से कीजिए। द सेम एज एज द माइनर इन द पुणे केस, जिनकी उम्र पुणे केस के नाबालिगों के समान थी। हु वाज प्रिज्यूम्ड टू बी द अडल्टेड एंड रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी फॉर अ वीक, जिसके बाद इन्हें वैश्यक मान लिया गया और 1 सप्ताह के लिए न्यायिका के हिरासत में दे दिया गया। Subsequently, he was shifted 2 weeks for allegedly transporting mahua or liquor traditional brewed by this community, जिसके बाद इन्हें इनके समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से महुआ शराब बनाने के गृह के पास स्थानांतरित कर दिया गया। थैंक यू।